یہ تو پٹی دیکھ لیں گے اس کے بالکل سامنے رہنا ہے، چونکہ وہاں تک پہنچنا تو ناممکن ہوگا، تو حجر اسود کے سامنے آنا ہے. ایسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے کرنا ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، ہے نا؟ یہ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھیں، ہے نا؟ آپ حجر اسود کے سامنے ہاتھ کر رکھیں، ابھی آگے نہیں بڑھنا، یہ لینا ہے اس کی طرف کہیں، حجر اسود کی طرف ہاتھ ہونا چاہیے. نماز میں جیسے اٹھا دیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. یہ اپن نے کر لیا. اب اپن کو شروع کرنا ہے. پہلا چکر ہے، احرام بنا ہوا ہے اپنا، کعبۃ اللہ پہ ایک دفعہ گئے ہیں، اپن عمرے کا طواف کر رہے ہیں، تو اپن کو اتفاق بھی کرنا ہے. در کو اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ آپ کا گانا گندا تب رہے گا اور دونوں پلو آ جائیں گے. لاؤ چادر لے کر کے آؤ، دو چادریں لے آؤ، دو آدمی کو کرو دفعہ دونوں ڈالنا. ہاں اس کو بھی دونوں بس یہ استوا ہوگا. یہ ساتوں چکروں میں یہ کیفیت رہے گی اپنی، ٹھیک ہے؟ استوا. اور شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، مونڈوں کو اچکاتے ہوئے، ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اور اکڑ کر کے پنجوں کے بل چلنا ہے 3 چکروں میں. چلیے اب شروع کیجیے. پہلا چکر شروع ہو رہا ہے، ذکر کرتے رہیے، پوری دعا کرتے رہیے، چوتھا کلمہ پڑھتے رہیے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. ہونے تو مٹکاؤ، ہونے اٹھاؤ، باہر عمل ہونا ہے. ذرا سینہ تان کر کے قابل کی طرف رکھنا، بالکل نیچے نظر نہیں رکھنا، موڑے اچکاتے ہوئے پنجوں کے بل چلنا ہے نا. اب یہ رکن یمانی آ گیا کہ حجر اسود تک کیا کرنا ہے. چلیے وہ موڑے اچکائیے پنجوں کے بل، اکڑتے ہوئے یہاں کے رک جانا ہے، حجر اسود کے سامنے رک جانا ہے. وہی کرنا ہے جو اگر میں پہلی دفعہ کرا تھا. ہاتھوں کو تو دونوں ہاتھوں کو تکبیر کی طرح، دونوں ہاتھوں کو تکبیر کی طرح جیسے نماز میں کرتے ہیں ایسا کرنا ہے. بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. ہاتھوں کو چکو. اب چلیے دوسرا چکر رمل کیجیے، حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ركن يماني آ گیا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا تو مزہ آ رہے ہیں، آگے منٹ میں ہونا میں پتہ چل گیا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں بھی ہوتا ہے ایک چکر. ہاں نہیں 3 چکر ہو گئے. ہاں بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کا وضو ہے، وضو کو یاد رکھنا ہے، چکروں کو یاد رکھنا ہے. لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. بولنا مطلب
क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वलिल्लाहिल हम्द। لا اله الا الله ولله الحمد سبحان الله لا اله الا الله ولله الحمد याद हो गया? क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोदी साहब भी लग रहा है। इस्तेलाम करो, तीसरे चौथे चक्कर का इस्तेलाम करो। हाथ उठाओ। पीछे करो, पीछे पहले तो पीछे करो। हजर असवद की लाइन में आना है अपन को, ग्रीन लाइन। नियत करनी है इस्तेलाम से पहले। क्या करेंगे नियत? शुरू से कर रहे हैं हमारा भाई, शुरू से। नियत करेंगे तब आप क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। नियत क्या करेंगे? आप बताओ। नियत करता हूँ अल्लाह मेरे साथ चक्कर होता है आपको आसान नियत करता हूँ तवाफ अल्लाह के लिए अल्लाह मेरे आसान आसान ये नहीं है। तवाफ का आसान हाँ, तो बिल्कुल काबा मौजूद है। अगर इस टाइम के अंदर अपन निकल सके तो फिर आगे तो बनता नहीं है। तीसरा कलमा ए अल्लाह, मैं तेरे घर के तवाफ की नियत कर रहा हूँ 7 चक्करों। ए अल्लाह, मैं तेरे घर के तवाफ की नियत कर रहा हूँ 7 चक्करों की। इसको मेरे लिए आसान करवा और बहुत आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और उसके बाद तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा या चौथा कलमा जो कुछ जिक्र कर रहा हूँ, दुरूद शरीफ जो भी जो आपको याद हो। ए अल्लाह, मैं तेरे घर के तवाफ की नियत कर रहा हूँ 7 चक्करों की। इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं तेरे घर के तवाफ की नियत करता हूँ 7 चक्करों की। इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अलिय्युल नहीं, इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आयतुल कुर्सी में तो अपन पढ़ते हैं ना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। लेकिन इसमें क्या होगा? वहुवा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल। बिल्लाह की सिफत है, बिल्लाह पे दे रहे ना तो अली को भी दे रहा है। यार अभी तक आ जाए। ये नियत कर लिया बंदा, हजर असवद के सामने आ गया। अब इस्तिलाम करना है। नमाज की तरह हाथ उठाइए, नमाज की तरह हाथ उठाइए। आप इसके हजर असवद की तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिस पत्थर पे खड़े होकर काबे की तामीर की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उसके कदम उस पत्थर में जम गए, निशान बन गया। 4-5 शब आ जाते हैं उसके बीच में, फिर ये है, फिर उसके बाद फिर पूरा हिस्सा। यहाँ जो वादी को तवाफ पढ़ना है, अगर मौका मिलता है, वरना हरम शरीफ में किसी भी जगह पढ़ लो। यहाँ तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मिलना। पढ़ने भी नहीं देते, अपनी नमाज भी खराब होती है, लोग बाहर सामने से निकलते हैं। तो जहाँ भी जगह मिले वहाँ पढ़ सकते हैं। या ऊपर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऊपर भी पढ़ मस्जिद हराम में कहीं भी पढ़ लीजिए, सकते हैं, सफा मरवा पे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, अपने घर पे कहीं भी पढ़ सकते हैं। अपने कमरे पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं अब इसके बाद क्या करेंगे? जमजम पिएंगे। क्या करेंगे? जमजम पी। उसके बाद चक्कर हो गए अपने 7 चक्करों में 8 इस्तेलाम हुए अपने। 7 चक्करों में 8 हुए। 9वां इस्लाम आप उधर आ जाइए। मुल्तज़म पे भी जाना है ना, मुल्तज़म पे जाके चिमटना है, दुआएं करना है, जिस्म को, चेहरे को, घरों को लगाना है। मुल्तज़म जो है ना, मौका मिल जाए तो
अगर मौका मिल जाए तो वहाँ भी मारना, वहाँ भी बहुत मुश्किल होता है, जाना बहुत मुश्किल है। अब 2 फर्ज तो हो गए अपने उम्रे के, क्या क्या हो गए? क्या हो गए? एहराम और तवाफ। अब 2 वाजिब बाकी हैं। क्या क्या है वो 2 वाजिब? सही और हलक। अब आ जाओ मकाम इब्राहिम, उस पर आ जाओ, सफा मरवा पे आ जाओ। आइए इधर आइए। हजर अस्वद की तरफ इसकी तरफ करेंगे चेहरा अपना यहाँ सही नियत कर लेंगे। ये अल्लाह तवा के 7 चक्करों की सही नियत करता हूँ, इसको आसान फरमाओ, कबूल फरमाओ। ये अल्लाह मैं सफा मरवा के 7 चक्करों की नियत करता हूँ, इसको आसान फरमाओ, कबूल फरमाओ। अब 3 मरतबा यहाँ हमको कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। और 3 मरतबा चौथा कलमा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और 3 मरतबा चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और दुआ भी कर लेंगे। हजर अस्वद दिख रहा है ना, एक दुआ की कबूलियत। अब नवा इस्तिलाम ऐसे करते बात बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। अब ये समझ लीजिए आप, 2 हरी लाइटें लगी हैं, एक ये और एक आगे। इनको कहते हैं मीलेन अफजलेन। क्या कहते हैं? मीलेन। 2 हरी लाइटें आपने इंग्लिश में याद रखी, 2 हरी लाइटें। जब आप यहाँ से चलेंगे पूरा ही हरा कर रखा है उन्होंने। 70 मीटर जब आप मरवा की तरफ बढ़ेंगे तो 50 मीटर का पास हिस्सा ही एक लाइट से दूसरी लाइट की तरफ है। इस 50 मीटर के हिस्से में जरा दौड़ करके चलना है। हजरत हाजिरा जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में निकली थी, तो चूंकि जब वो सफा पे चढ़ी तो दिख रहे थे इस्माइल, जैसे जैसे आगे बढ़ी तो फिर नीचे ढलान आ गई, नशेब आ गया। तो वो इसलिए कि जल्दी से मैं ऊंची जगह पर चढ़ जाऊँ ताकि इस्माइल मेरी नज़रों के सामने रहे, कोई जानवर कोई दरिंदा आके उनको चीर फाड़ न दे। बेटे की मोहब्बत ममता माई समझती, तो वो इस मकाम से दौड़ करके चली, है ना। और जैसे ऊपर चली तो फिर वो दिखने लगे तो अपनी चाल पे आ गई। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई, तमाम हाजियों के लिए लाजिम कर दिया कि सही में मेरी उस बंदी की नकल करना। तो ये दौड़ते हैं ना दोनों हरी लाइटों के दरमियान, वो हजरत हाजिरा का अमल है, वो दौड़ी थी तो हमें भी दौड़ना ही है। ये साइड आपके पूरे वो सफा की पहाड़ी है, वो इस तरफ जाएंगे तो वहाँ मरवा की सी पहाड़ी है, जरा जरा सी, बस ये तो एक निशान बाकी है इसमें से जरा जरा पत्थरों के निशान बाकी लग रहे हैं, बाकी तो की पहाड़ी है, वो तो दिखी है पूरी साफ। और मरवा पे जरा जरा सी वो तो दिखेगी। 2 साइडें हैं। ग्राउंड फ्लोर अगर ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं आप तो दिखेगा वो, और वो नशेब भी दिखेगा नीचे से ऊपर जाने वाला। और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर करेंगे तो हम तो दिखेंगे। अब ये 2 साइडें हैं, एक इस वाली साइड पे हमें शुरू करना है यहाँ से। करिए दौड़ते हुए कुछ पढ़ना है। हाँ, तीसरा कलमा पढ़िए। ये लाइटें आ गई आप यहाँ तक काम जाता नहीं है, सब यहाँ से दोनों लाइटों के दरमियान और अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब ये मरवा आ गया, मरवा ये मरवा जो है मरवा के आगे आए बहुत बड़ा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा सा हिस्सा है। वहाँ भी वही 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु
इस लाइट का नॉर्मल है यहाँ तक। अब जैसे लाइट बंद आई, दोनों लाइटों के दरमियान जरा दो ही चलना है। ये भी सिर्फ मर्द हजरात औरतें अपनी आम जान से चलेंगी, और रमल भी करेंगे तवाफ में, और सही में दोनों हेलीकॉप्टरों के दरमियान को जोड़ेंगे नहीं। ये सफ़ा मरवा के दरमियान में इस तरफ जो दरवाज़ा है वो बाब सलाम कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरवाजे से दाखिल होते थे। आप उसके बाद बड़ा मैदान है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है, इसमें आपकी पैदाइश हुई, जहाँ रहे आप, वो पूरा बहुत बड़ा सारा मैदान है। लेकिन इस समय सफ़ा मरवा के दरमियान में ये दरवाज़ा है जिसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं। चलिए अब क्या कितने हो गए? 2 चक्कर हो गए, ऐसे 7 चक्कर करना है। ये वाजिब, एक वाजिब हो गया अपना उम्रे का, एक वाजिब सफ़ा मरवा की सही माने दौड़ लगाना, चक्कर लगाना। अब एक वाजिब और बाकी है, वो क्या है? हलफ कराना है, यानी हलफ सर मुड़ाना है, सर मुड़ाना है। आप खुद भी मोड़ सकते हैं अपना सर, दूसरे का सर भी मोड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती। कहीं ऐसा हो कि इसे बचाने के चक्कर में उस तरह लग गया और बैठ गया तो मामला खराब हो जाए। इसलिए कोशिश न करें, अल्लाह से नाई से करा लें। औरतों के लिए क्या करना है? अपनी चुटिया को पकड़ करके अखीर से एक बोर के बराबर कैंची से उनको बाल छोटे कराना, कतल लेना है। ये दोनों वाजिब अदा हो गए। अब आप उम्रे की पाबंदियों से, ihram की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। अब अगर आप नया उम्रा करना चाहते हैं, यहाँ एक और उम्रा करें, तो आपको मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, फिर वही ihram बांधना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगी, तलबिया पढ़ना पड़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ना पड़ेगी, फिर आपको आना पड़ेगा हरम शरीफ, वही काम करना है, 7 चक्कर काबतुल्लाह के, फिर जो है मकाम इब्राहिम के 2 रकात, फिर जो है जमजम पीना है, मिजाब रात मुतज़म पे दुआएं करना है, और फिर हजरत सफ़ा मरवा पे आना है, सही करना है, और फिर उस तरह गिरवाना, तो दूसरा उम्रा हो जाएगा। हर मरतबा मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा, और अगर बाल नहीं है तो सर के उस तरह पर रखा है, बाल नहीं हो तब भी हाँ जब भी गिरेगा। अगर कोई बाल छोटे कराना चाहे तो पूरे सर के एक पोर के बराबर उसको छोटे कराना है, एक पोर के बराबर। लेकिन अगर किसी भी जगह से एक पोर से कम रह गया तो दम लाने का छोटे बड़े उसका अंदाजा आप कैसे करोगे? मैंने वहाँ बताया था, हलफ कराने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ की। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन। या अल्लाह हलफ कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हलफ कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हलफ कराने वालों की मग़फ़िरत फरमा। और असर बाल छोटे कराने वालों के लिए 1 ही मरतबा मग़फ़िरत की दुआ की, तो 3 मरतबा का मिज़दार बने ना। लेकिन ये बाल बहुत अब छोड़ते जाती होगी। अब तो जो बाल रखने का हुक्म है उनको रखना है इंशाअल्लाह, दाढ़ी भी रखना है इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक रखना है। फिर देखो आप कैसी नूरानियत है, ज़िंदगी में नूरानियत, औलाद में नूरानियत, माल में बरकत, हर चीज़ में बरकत है, बरकत है। अब आप हज़रात को उधर तशरीफ़ ले जाएँ, ख़वातीन को बुलाएं। छोटी सी बात है, जैसे अलग कराने के लिए बताया ना आपने, तो मतलब अभी तो खैर आपने सारी बात क्लियर कर दी। बाकी जो लोग जाके आए हैं, एक आदमी को पहले नाई से कराना पड़ेगा, फिर मैं इनका काट सकता हूँ, ये 2 के ऐसा भी क्या कर सकते हैं? जैसे एक सेकंड, मैंने अपने बाल नहीं मुड़वाए, उससे पहले मैं इनके मतलब जैसे एक आदमी नाई से करवा ले, फिर मैं इनके कर दूँ, फिर हम 2 हो गए, अब 2-4 के करने वाले तब भी ठीक है, नाई से ना करवा कोई दिक्कत नहीं। जरूरी